ओके ओके ओके. सो वी वर टॉकिंग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ और हमने आई गेस वी हैव स्टडी. क्या हो गया? हम ब्लैक हो गए. गॉड वी आर जस्ट विजिबल हो रही है. गॉड. Okay, let me just. Is the screen visible now? Yes, ma'am. Okay, now it is visible. Okay. Yes, ma'am. All right. So yes, we were talking about William Wordsworth and हमने कई सारी चीज़ें, कई सारे facts and biography we have already discussed about him. और whosoever was not present on that day, they can just watch the previous section which I have already uploaded in YouTube. Okay. So let's just quickly revise William Wordsworth. William Wordsworth, he was born in 1770 and 1815, and he is one of the most prominent writer of Romantic age. We can say that Romantic age was started by him. Okay, we can say that, and he was the first generation of Romantics. Okay, along with William Blake and S.T. Coleridge. Okay, and we have very clearly discussed that the Romantic period, what Romantic period was and how it started, what the lyrical ballad was, and all those things. Okay, all those aspects of the poet and the writer we have already discussed. Let's just quickly revise the facts about poem. Okay, facts regarding poems. So this poem, it was first published in 1807, or the volume of poem was Poem. Okay, the name was Poem in 2 volumes. Okay, later it was revised in 1815, and the poet have replaced some of the words. Okay, whenever we will complete the poem, you will come to know that there are some words which been replaced in 1815 versions, and the version we are studying now, it is 1815 version. Okay. So yes, it was a kind of revision or revised version that we are studying now. Okay, and this poem, it was seen as the classic of the Romantic poetry. And what classic of Romantic poetry? What is the classic poetry? We have already discussed that also. Okay, so yes, we have started it. This was the summary. The first paragraph, I guess we have already. No, we haven't completed it, right? Ria, we haven't completed it, right? Okay, you were not in the class. वीडियो में नहीं था वहाँ तक है बस होस्ट ऑफ गोल्डन डेकोडेंस. तो आपने बताया था कि यस, बिब्लिक वर्ड्स क्राउड और वो. ओके, बस यहीं पे ओके, यहीं पे आई गेस फिर दूसरी शायद टाइम ओवर हो गया था, ऐसे कुछ हुआ था. एनीवेज, यस. ओके, सो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. ओके, ये हमने कर लिया था, एंड वी हैव डिस्कस दिस दैट speaker, he was walking alone, just like the solitary cloud in the sky. Okay, he is just comparing himself with the solitary cloud. Solitary यानी कि lonely cloud in the sky, which was floating all over hills and valleys. Okay, he just compared himself with a cloud, and suddenly he said that he saw a crowd. Okay, this crowd, it is a kind of personification. Okay, personification, simile and metaphor में क्या difference होता है? We have discussed that also. Okay, so this is a kind of personification which okay, this personification, it is a kind of link, okay, which serve both the speaker and nature together. Okay, तो so speaker, he is just standing in for humanity more generally. तो वो क्या करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है? सी, पहली जो लाइन है वही हमें ये चीज़ बताती है कि पोएम जो है, इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मैनकाइंड एंड द नेचुरल वर्ल्ड.
ओके तो यही एक सॉर्ट ऑफ थीम है रोमांटिक पीरियड का. रोमांटिक पीरियड इट इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी. ओके तो हम रोमांटिक पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड के टाइम से भी कंपेयर कर सकते हैं कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दी बोथ द एजेस. एलिजाबेथन पीरियड में भी हम देखेंगे, जब हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं या अदर राइटर्स को पढ़ते हैं, तो वी हैव सीन दैट कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव उनकी प्लॉट होते थे, उनकी स्टोरीज होते थे. ऑल्दो देयर वाज अ काइंड ऑफ fixed rhyme scheme involved there. Similarly we can find a kind of rhyme scheme here too. Okay, rhyme scheme हम यहाँ पे भी देख रहे हैं. It is a kind of iambic tetrameter. Okay, tetrameter हम यहाँ पे देख सकते हैं. Okay, so yes, so what this poem, the first line of the poem suggests is that there is a kind of link which has been established by the poet. Okay, और ये लिंक किसके बीच में है? मैनकाइंड के एंड नेचुरल वर्ल्ड के, यानी कि नेचर और ह्यूमन का एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है. एंड येस, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो कंपैरिजन है ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है. ओके जैसे कि हम देखते हैं कि राइटर, वो जो स्पीकर है, ही वॉज जस्ट वॉकिंग अबाउट. ओके देयर वॉज नो काइंड ऑफ पर्पस कि वो वाई ही वॉज वॉकिंग लाइक दैट, वाई ही वॉज वॉकिंग, ओके वाई ही वॉज वॉकिंग लोनली. ओके सो सिमिलरली ऐसे ही वो क्लाउड्स को कंपेयर करने की कोशिश करता है. गेटिंग इट, ये किस तरीके की सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, दैट आई वॉज जस्ट वॉकिंग विदाउट एनी पर्पस, सेम एज क्लाउड्स. ओके क्लाउड्स का भी कोई ऐसे एम नहीं होता है. ओके दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिल्ड इन पर्सोनिफिकेशन. ओके बिकॉज ये क्या होता है कि लोग, ये कॉमन थिंकिंग है, दिस इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग विच ऑफ्टन अकर्स जब लोग क्या करते हैं, व्हेन पीपल लुक अप द स्काई. ओके व्हाट दे थिंक दैट क्लाउड दे हैव नो एम, दे आर जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी काइंड ऑफ एम. तो गेटिंग इट, किस तरीके से ये कंपैरिजन दोनों स्पीकर्स के बीच में, स्पीकर एंड नेचर के बीच में इस्टेब्लिश हो रहा है. Getting it? So suddenly what he has seen, yes, we were talking about a kind of spark. आपकी वॉइस कट हो रही है. Oh God, वॉइस नहीं आ रही. अब क्लियर है? कट कट के आ रही है. Now is it clear? Now it's okay? अब वॉइस आएगी तो फिर यहाँ पे स्लाइड भाग जाएगी. स्लाइड विजिबल है? इज स्लाइड विजिबल है, राइट? सबको ही आवाज़ कट के आ रही है या फिर एक स्पेसिफिक एक ही बच्चे को नहीं आ रही है? सही आ रही है. मुझे तो क्लियर मुझे क्लियर आ रही है. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. ओह गॉड, हु इज दिस? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. नहीं आ कट कट के आ रही है. हम कट कट करके क्या करें इस नेटवर्क का. नाउ इट्स ओके. अब बीच में, अब ठीक है. ओके यू कैन देखो आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो वैसे, बट येस, बट एट द सेम टाइम इट्स लाइव क्लास. नाउ इट्स ओके. येस, नाउ इट्स ओके. Done with this stuff. It's okay now. Can we start? We can start, right? Okay, so yes, we were talking about the comparison. The first line is
the first line which have composed, okay, the kind of comparison between humans and the nature, okay. तो ये एक तरीके का comparison था which we have seen. Then now suddenly क्या होता है, there is a kind of scenery that flash the eyes of writer, okay, the kind of visual shock जो सीनरी ने राइटर की आँख में, राइटर की आईज़ में क्रिएट किया, ओके. वो शॉक क्या था कि सडनली व्हाट ही हैज़ सीन अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ओके. दिस वाज the scene was what, उसने क्या करा, suddenly he has seen golden daffodils, a crowd of golden daffodils. These daffodils, where they were beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. Getting it? एक sort of एक rhyme आप यहाँ पे देख सकते हैं that the end sound they are kind of matching each other, okay. ये end sound आप देख सकते हैं, cloud and crowd, hills and daffodils, trees and breeze, okay. This is the structure of tetrameter. Iambic pentameter you have studied, right? And now this is iambic tetrameter. You can just write it down. Okay, and yes, there is a kind of yes, this is a kind of personification again where जो daffodils हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं कि daffodils they are fluttering and dancing in the breeze, okay, they are enjoying themselves, okay. What he said suddenly, जो थर्ड और फोर्थ लाइन्स जो हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं दैट थर्ड और फोर्थ लाइन जो हैं जो फोकस है वो कम्प्लीटली हमें पता चलता है कि जो पोएम का जो कंप्लीट फोकस है या सेंट्रल फोकस जो पोएम का है वो किसके ऊपर है, डैफोडिल्स के ऊपर है, ओके. तो डैफोडिल्स, नाउ डैफोडिल्स सर्व एज द सेंटर फोकस ऑफ द पोएम. Now, what are daffodils? Daffodils are basically some bright yellow flower जो क्या होता है, when they herald in the beginning of spring in Britain, ओके. क्योंकि ये जो प्लेस है, ये प्लेस हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन में डैफोडिल्स कब लगते हैं, जब स्प्रिंग सीज़न बिगिन होता है, ओके. तो स्प्रिंग सीज़न के बिगिन होने के टाइम पे ये डैफोडिल्स खिलते हैं. एंड स्प्रिंग जो है आपको पता है कि बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द ईयर होता है व्हेन दीज फ्लावर्स, स्प्रॉट्स एंड ऑल दीज trees and all these things they started growing. Getting it? So there is a kind of sudden entrance into the poem. अचानक से इनकी एंट्री होती है, ओके. सेम लाइक जैसे शेक्सपियर के प्ले में अचानक से कोई कैरेक्टर स्टेज में आ जाता है. जब ओपन प्लेज हुआ करते थे, ठीक है, ओपन ड्रामा हुआ करता था, स्टेज शोज़ हुआ करते हैं, तो अचानक से कोई जिस तरीके से कोई कैरेक्टर एंट्री लेता है, सिमिलरली डैफोडिल्स भी पोएम में एंट्री लेते हैं ऑल एट वंस. गेटिंग इट? ऑल एट वंस जो है दे आर सडनली entered into the poem, okay. And ये जो है तरीका, it is itself a way of representing, okay, that they suddenly bloom, okay, कि ये अचानक से क्या हो जाते हैं, bloom हो जाते हैं, and between the season, okay. So these two things, these are the example of personification again, okay. So these are the example of. Is screen visible? Yes, ma'am. Okay. So these are the example of personification, which are fluttering and dancing, and this crowd. Okay. This crowd is also example of personification. The figure of speech used in the poem in the following paragraph, they are personification. ओके. सो यस, अब देखो हमें ये जो लाइन है, ये लाइन क्या डिस्क्राइब करती है कि वेयर दीज डैफोडिल्स आर. सो दीज डैफोडिल्स दे आर सिचुएटेड बिसाइड द लेक के किनारे, एंड बीनीथ द ट्री,
ओके तो ये क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ये कहाँ सिचुएटेड हैं, दे आर बिहाइंड, बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्री। ओके सो यस, तो ये क्या है, एक तरीके से इमेजिनेशन की शिफ्टिंग है, दैट एक काइंड ऑफ सेटिंग प्रोवाइड हमें करी जा रही है। देखो हमेशा किसी भी पोएम में या फिर किसी भी ड्रामा में देयर इज़ अ काइंड ऑफ सेटिंग जो हमें बताती है कि जो प्ले है या फिर जो पोएम है वो कंपोज कहाँ पे करी जा रही है, या फिर किस व्हाट काइंड ऑफ सेटिंग इट हैज़। तो फॉर डैफोडिल्स द सेटिंग इज द लेक एंड ट्री। तो फिर ये जो डैफोडिल्स हैं ये कहाँ सिचुएटेड है, दे आर सिचुएटेड बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। ओके सो व्हेनेवर, जब भी क्या होगा, जब आपको एग्ज़ाम में ये पैराग्राफ आएगा तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे कि जो लाइंस हैं कहाँ से ली गई हैं, किसने लिखी हैं, और आप पैराग्राफ को इंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ से ये लाइन ली गई हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन पर अगर आपको प्लस पॉइंट चाहिए तो आप कुछ चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप ये डिटेल लिख सकते हैं कि वेयर और द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, वेयर एंड व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, आप ये डिस्क्रिप्शन उसमें लिख सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो नंबर गेन करती हैं, दैट इज़ दैट यू शुड जस्ट प्रोवाइड द फिगर ऑफ स्पीचेस दैट बीन यूज इन द लाइन्स। ओके तो फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीचेस जो हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट देयर इज personification used all over and simile is been used। okay so with example you can just describe it। ठीक है, जहाँ पे भी personification यूज हुई है उसको with example आप describe कर दीजिए एंड फाइनली क्या आ जाता है, conclusion। okay and yes you can just also mention that iambic tetrameter is used in it and okay so इस तरीके से आप अपने जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ओके सो दिस वाज द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन जस्ट आस्क। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट आस्क। अभी हमारे पास टाइम है, वी कैन जस्ट टेक द अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन टेक। यस एनीबडी, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इट्स वेरी शॉर्ट पोएम, ओके इट विल जस्ट एंड लाइक दैट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके तो फिर we can just I guess we can just continue। okay we will just start the next paragraph। okay now next line 7 to 12। okay now ये जो चीज़ थी यहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे एंड हुई थी, ये यहीं से जो सेकंड पैराग्राफ है बिगिन होता है। यहाँ पे एंड कहाँ पे हुआ था, दैट दीज थिंग्स दे आर फ्लटरिंग, दीज डैफोडिल्स दे आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ओके दे आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ओके वो झूम रहे हैं, एंड दे आर डांसिंग, दे वो नाच रहे हैं विद हाउ दे आर डांसिंग विद द ब्रीज। ओके ब्रीज मैंने बहुत बार बताया है कि ब्रीज क्या होता है, जब बहुत धीमी धीमी सी हवाएं चलती हैं। ओके तो उसमें आप देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं कि दैट प्लांट्स आर देयर एंड वेन एवर दिस सॉफ्ट विंड, सॉफ्ट ब्रीज इट फ्लो, the plants they tends to be flutter with it। okay they tends to be dance with the soft wind। ओके तो सिमिलरली डैफोडिल्स को देख के भी पोएट के दिमाग में यही चीज़ आ रही है, उसके आईज़ में यही इमेजिनरी आ रही है, दैट दे आर डांसिंग एंड दे आर फ्लटरिंग इन द ब्रीज एंड दे आर कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। कंटिन्यूअस, ओके कंटिन्यूअस इज देखो पहला ही पैराग्राफ एक फिगर ऑफ स्पीच से स्टार्ट हो रहा है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज दिस, कैन एनीबडी आंसर? Very good, very good, very good। So the figure of speech yes used in this lines, they are simile। yes continuous, so they are continuous as the stars that shine। now
अब यहाँ पे कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में हो रहा है. फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन है वो क्या है? What is that? Daffodils. Very good, very good. There are two objects here. First one is daffodil and second one is star. Very good. Okay, तो comparison इन दो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हो रहा है. एंड ही इज लाइक daffodils, they are continuous as the stars. Okay, now he is comparing it with the star. Okay, तो ये स्टार के साथ उन्होंने क्यों, स्टार्स के साथ उन्होंने क्यों कंपैरिजन किया है? ताकि वो क्या कर सके, दे कैन जस्ट एम्फसाइज ऑन देयर शीर नंबर. गेटिंग इट, कि कितने ज़्यादा ये डैफोडिल्स हैं. जैसे कि स्टार्स होते हैं नाइट में, आसमान में. ओके, वेन एवर यू सी अ गुड नाइट, द ब्राइट नाइट विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स. Okay, similarly the poet, he is just gazing on these daffodils and he is saying that they look like those stars. और जब वो दो stars की बात हो रही तो वहाँ पे उनकी brightness की बात नहीं हो रही, बल्कि किस चीज़ की बात हो रही है? numbers की बात हो रही है. कि जिस तरीके से स्काई में एक गुड नाइट के टाइम पे स्टार्स दिखाई देते हैं, कि जो स्काई है पूरा स्टार से भरा हुआ होता है, सिमिलरली डैफोडिल्स भी ऐसे लग रहे हैं दैट इट्स लाइक दे आर नेवर गोइंग टू एंड. ओके, जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक हमें क्या हो रहा है? डैफोडिल्स नज़र आ रहे हैं. तो यू कैन जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि आप किसी एक प्लेस पे खड़े हैं एंड आप जैसे ही देखते हैं तो चारों ओर सिर्फ आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं. सो आई थिंक दिस विल बी सम सॉर्ट ऑफ मेस्मराइजिंग सीन. ऑलराइट, कि आप बस खड़े हैं, चारों ओर से फूल हैं. ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरी है दैट हैज़ फ्लैश्ड द माइंड ऑफ द पोएट. ओके, सो येस, आई थिंक ये वाली लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई है. ओके, कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. So they are continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Okay, ये लाइन कंटिन्यू हो रही है शाइन के बाद नीचे. ओके, सो ये क्या बता रहा है? सी, ये ऊपर वाली लाइन को ही कंटिन्यू करते हुए चीज़ें बता रहा है. दैट दे वर एज दी स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. मिल्की वे पता है ना क्या होता है? मिल्की वे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, यस. तो देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि जब भी हम क्राउड या फिर हम होस्ट की बात कर रहे हैं तो ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा था ये? जब व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इट इज़ अ काइंड ऑफ बाइबलिकल इल्यूजन, कि बाइबल का रेफरेंस है. आप वेरी गुड रिया, कि ये क्या है? ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है ग्रुप ऑफ एंजल्स. एक शीर सा हम कह सकते हैं कि ये एक बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस, यानी रेफरेंस फ्रॉम द बाइबल हो सकती है. कि क्राउड कई बार या होस्ट कई बार हम किसे कह देते हैं? ग्रुप ऑफ एंजल्स को हम कह देते हैं, या क्राउड हम बेसिकली किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ एंजल्स को कह सकते हैं. गेटिंग इट? तो जब यहाँ पे ये कंपेयर करने की कोशिश करता है डैफोडिल्स को, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है कि एक काइंड ऑफ एसोसिएशन, कि जिस तरीके से स्टार हैज़ अ काइंड ऑफ कॉस्मिक क्वालिटी, सिमिलरली डैफोडिल्स डू हैव, और वी कैन से डैफोडिल्स ऑल्सो लेंड द काइंड ऑफ कॉस्मिक क्वालिटी. ओके, इट इज़ जस्ट यू कैन से सपोर्टिंग द आइडिया दैट स्पीकर, okay, he is what you can say, witnessing something, okay, which is very essential to the existence itself. Okay, समझ रहे हो ना? Again there is a kind of comparison. It is very important, यानी कि ये बार बार ये प्रूव करना चाह रहा है कि नेचर का एसोसिएशन ह्यूमन के साथ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द रिलेशनशिप ऑफ नेचर विद ह्यूमन इज़ वेरी एसेंशियल.
गेटिंग इट। तो बार बार जब भी वो नेचर की किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, नेचर की किसी भी चीज़ों को जब वो कंपेयर करने की कोशिश करता है तो एक तरीके का सेलेस्टियल एक्सपीरियंस या सेलेस्टियल क्वालिटी वो प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, सिर्फ इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कि स्पीकर ही इज़ जस्ट विटनेसिंग समथिंग which is a part of nature and itself it become the part of human being. Getting it? It is as essential, यानी कि nature is as essential for the existence of human being. Nature is the important part for the existence of human being. तो बार बार यही चीज़ करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है. Okay? So it is a kind of natural word and its connection to the humankind. Okay, तो इस तरीके से ये बार बार comparison यहाँ पे हम देख रहे हैं. Now, अब हम आगे देखते हैं. They stretched in never-ending line. Stretched का मतलब यहाँ पे है कि they are just stretched. They are like ये फैले हुए हैं. Okay, they are just stretched themselves. Whenever I see, what I see, it is a kind of never-ending sight of daffodils. Okay, never-ending line. ये जो daffodils हैं ये फैले हुए हैं. They have stretched in never-ending line. Okay, this is the idea of being stretched. कि stretch. जैसे रबर बैंड होता है ना, वी कैन स्ट्रेच द रबर बैंड टू इट्स लिमिट, लाइक वी कैन स्ट्रेच इट टू एनी, लाइक वी कैन स्ट्रेच इट द वे वी वांटेड टू. ओके, सो यस, सो दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. सो अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉस्मिक क्वालिटी कि समथिंग हेवनिक. ओके, जैसे कि क्या हो, ये हेवन हो. ओके, इतना ज़्यादा ये मास इस डैफोडिल्स, ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स को हम देखते हैं, जब हम देख रहे हैं, जब हम विटनेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से फील हमें हो रहा है. नाउ 10,000 saw I at a glance. ओके, अब ये इस लाइन में क्या बोल रहा है कि आई हैव सीन 10,000 डैफोडिल्स इन अ, ओके, यस, along the margin of the bay. सिंपल है. अगेन ये सेटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस तरीके से वो कह रहा था कि इट वॉज बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्री. सिमिलरली अब एक और सेटिंग हमें, एक और इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अबाउट the setting or where these daffodils are situated, where they have been situated. ये हमें क्या पता चलता है कि they have stretched. Where they have stretched themselves, कहाँ वो reside करते हैं? They reside along the margin of a bay. Bay बच्चों बेसिकली क्या होता है कि जब एक वाटर बॉडी और लैंड के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम बे बोलते हैं. जो जोग्राफी के स्टूडेंट हैं, आई थिंक दे आर वेल फेमिलियर कि बे किस चीज़ को बोला जाता है. ओके, सो तो उस मार्जिन में, बे के जो मार्जिन में थोड़ी सी लैंड है, उस पूरी लैंड में वो क्या है, दीज डैफोडिल्स दे आर सिचुएटेड. ओके, सो अब क्या है जो मेन लाइंस हैं यहाँ पे, दैट 10,000 saw I at a glance. नाउ देर इज़ अनदर, पहले हम इसे ऐसे समझते हैं, क्या कैन यू सी थिंग्स लाइक दिस? क्या आप 10,000 चीज़ें एक साथ देख सकते हैं? कैन यू डू दैट? इज इट पॉसिबल? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? इट इज़ नॉट. ओके, इट इज़ नॉट. वाई? बिकॉज अगर हम देख भी ले फिर भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे ना कि 10,000 है या नहीं है. एग्जैक्टली 10,000 है, हमें कैसे पता? गेटिंग इट? तो दिस इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच employed here which is called hyperbole. Okay, the figure of speech is hyperbole. And why writer use this, why poets use this? It is a kind of exaggeration of things.
चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हमें बोलना होता है, जैसे हिंदी में भी फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं, अलंकार देखते हैं, जब आप अतिशयोक्ति कहते हैं कि चीज़ों को अतिशयोक्ति कर देना, ओके, तो इंग्लिश में वही चीज़ हाइपरबल हो जाती है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करके हम चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि 10,000 आई हैव सीन इन अ ग्लांस होता है कि एक नज़र में देखना, ओके, इन वन ग्लांस ही हैज सीन 10,000 daffodils. Okay, why speaker is using this hyperbole? Okay, he is just using this hyperbole to guess the number. Getting it? तो वो क्यों इस हाइपरबोल को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि वो अपनी ऑडियंस को, हम रीडर्स जो हैं, हमें ये बताने की कोशिश कर सके, इट इज़ जस्ट एन अटेम्प्ट टू गेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डैफोडिल्स इन व्यू। गेटिंग इट? वो इतने सारे डैफोडिल्स हैं कि राइटर कह रहा है कि दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं जब एक ग्लांस में देखता हूँ मुझे 10,000 डैफोडिल्स दिखाई देते हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ प्रिसाइज नंबर, बट येस इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेजिनरी विच इज़ प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ स्पीकर। और प्रेजेंट वो करने की क्या कोशिश कर रहा है कि दीज डैफोडिल्स दे वर लाइक इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये डैफोडिल्स वहाँ पे थे, एंड ही इज़ यूजिंग दिस फिगर ऑफ स्पीच जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट, just to represent the larger quantity of the daffodils. Okay, and these beautiful daffodils, what they are doing, okay, he is now suddenly returning back to the personification. Okay, देखो कितना क्विकली ये जो राइटर है ये एक हाइपरबोल यूज कर रहा है, देन फॉर सडनली ही इज जस्ट रिटर्निंग बैक टू द पर्सोनिफिकेशन। एंड पर्सोनिफिकेशन में रिटर्न करते हुए वो क्या बोलता है, दे आर जस्ट टॉसिंग देयर हेड। Okay, whenever you listen the music which you like, what you do? कभी भी जब आप अपना मनपसंद सा म्यूज़िक सुनते हैं तो क्या पहली चीज़ आप करते हैं? जस्ट टेल मी दैट, सब अपना एक्सपीरियंस मुझे बताओ, व्हाट यू पीपल डू? यस, वेरी गुड। द फर्स्ट थिंग वी डू इज़, कभी भी अगर हमारा फेवरेट सॉन्ग सामने आ गया तो व्हाट वी डू, वी स्टार्टेड सिंगिंग विद द सॉन्ग। यस, एंड सेकेंड चीज़ क्या होती है, फिर हम क्या करते हैं? यस, और क्या करते हैं? क्या बच्चे, आवाज़ क्लियर नहीं है। यस, what we do? We shake our head with the music. Very good. What we do? Very good, very good. What we try to do, we try to shake our heads, we try to thumb our feet, या फिर हम क्या करने लगते हैं, क्लिकल करने लगते हैं। There are many things. Okay, सडनली जब कुछ भी चीज़ ऐसी है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, ओके, कभी अचानक से हमारा फेवरेट फूड वहाँ पे आ जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत पसंद है, तो व्हाट यू पीपल स्टार्ट डूइंग, किसी अपने फेवरेट फूड को देख लिया तो क्या होने लगता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट फीलिंग? यस, यस, व्हाट इज द एग्जैक्ट फीलिंग? कुछ भी ऐसी फेवरेट चीज़ जब आपके सामने आ जाती है तो क्या होता है, यू जस्ट ट्राई टू enjoy that moment. Getting it? So what writer is trying to say that these daffodils, they are just enjoying, they are just enjoying the moment, they are enjoying the soft wind that is flowing. It is a kind of liberated moment. Okay, they are just feeling this moment, they are feeling their liberty, their freedom. Okay, so ये क्या है, ये जो रेफरेंस है अगेन कि दे आर डांसिंग, ये क्या एसोसिएशन है? ये एसोसिएशन जो है ये क्या बोल रहा है, ये क्या अलाउ करता है कि दे आर जस्ट ट्राई टू बी देमसेल्फ। गेटिंग इट?
what these daffodils are doing, ये personification इसके करने का यही मीनिंग है कि they are just try to be themselves. Again now we can see this कि again वो comparison करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से human जो है, ह्यूमन बीइंग जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ता है, एंड ह्यूमन बीइंग जो ही जस्ट ट्राई टू बी वन सेल्फ, ओके, एट अ टाइम, ओके, ह्यूमन बीइंग जो क्या करता है अपनी फेवरेट चीज़ों में, ही जस्ट ट्राई टू एंजॉय दीज मोमेंट्स. सिमिलरली नेचर की जो ऑब्जेक्ट है या नेचर जो है, ओके, it's like way similar to human. Okay, it is like they stand on the common ground. Okay, तो फिर there is a kind of comparison between their existence as a human or their lively existence of the flower. Getting it? Human का existence और flower का existence दोनों में क्या करने की कोशिश करी गई है, एक common ground create करने की कोशिश करी गई है, जो writer throughout द पोएम करने की कोशिश करता है. गेटिंग इट? सो दीज आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स. तो बच्चों ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया. जस्ट गो थ्रू दीज 2 लाइन्स. अगर कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नज़र आती है तो जस्ट आस्क मी. यस, जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ. यस, कुछ चीज़ें इसमें अगर समझ नहीं आ रही है तो यू कैन जस्ट आस्क मी. एवरीथिंग इज क्लियर? यस यस, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? तो यस, आज हम यही 2 पैराग्राफ करते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू फास्ट बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, सो यस, या वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ टुमारो. ओके, आई विल जस्ट एंड दिस स्लाइड. ओके, सो यस, एवरीथिंग इज क्लियर आई गेस, है ना? एंड आई विल जस्ट डू वन थिंग, दैट आई विल जस्ट प्रेजेंट दिस सेशन. इसका जो ऑनलाइन सीरीज़ है वो उसको मैं तुम्हें दे दूँगी, तो तुम लोगों को अगर नोट्स बनाने में तो यू कैन जस्ट कंपोज नोट्स फ्रॉम लिसनिंग दैट. ओके, तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स वगैरह क्रिएट कर लीजिए अभी से. ओके, सो ओके, लेट्स कॉल दिस अ डे. ओके ओके बच्चों, यू कैन जस्ट लेफ्ट द ग्रुप. ओके ओके बेटा, थैंक यू बेटा.